हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे चॉइस ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। सो इन अर्लियर क्लास आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द चॉइस ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, दैट वाज द पार्ट 1 एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट 2। ओके, in part 1 we already discussed about the patient related factor, and in this class we are going to discuss about the organism related factor behind the selection of antibiotic. Okay, now just look at about the organism related consideration कि organism कौन सा organism ने इन्फेक्ट किया है पेशेंट को, उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं उनको हम देखते हैं। The first one thing is each antimicrobial agent has a specific effect on a limited number of microbes. As we know, some antibiotic are bactericidal and some antibiotic bacteriostatic. Okay, and some antibiotic are only specific to gram positive bacteria and some antibiotic are only specific to gram negative bacteria. Means antibiotic are effective against the limited number. Means some antibiotic are for narrow spectrum and some are broad spectrum. So that also decide the selection of the antimicrobial agent. Then successful chemotherapy must be rational and demands a diagnosis. क्योंकि हमको क्या डॉक्टर्स को क्या करना है, पेशेंट को ठीक करना है, सक्सेसफुल कीमोथेरेपी देनी है। इट मीन्स देयर सिलेक्शन शुड बी रैशनल, उनका सिलेक्शन प्योरली एंड प्योरली रैशनल होना चाहिए। एंड रैशनल सिलेक्शन के लिए इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म का डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। ओके, so it demands diagnosis. Okay, however what happen most of the time definitive bacteriological diagnosis is not available before initiating the treatment. As you all know that in India we have a very large population and a big country, and in villages we do not have a diagnostic centers. Okay, so in most of the cases doctor do not able to get the data of diagnosis at the proper time. That's why there is a necessary to start the initial treatment before getting the diagnosis report. Now the next factor is what? Bacteriological testing takes time and is expensive. An appropriate sample of infected material for bacteriology may not be obtainable. Okay, so the one of the important thing is that बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग टेक्स टाइम। ये एक तरह से टाइम लेती है क्योंकि बैक्टीरिया की हमें कल्चर करेंगे, कल्चर करने के लिए ऑलमोस्ट 24 से 48 आवर्स चाहिए होते हैं और उसके बाद ही हमें रिपोर्ट मिलेगी। तो ये टाइम ले रही है, उतनी टाइम तक पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए रोका नहीं जा सकता, उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, ट्रीटमेंट जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होंगी या दूसरी जो भी सुटेबल उनको एंटीबायोटिक लगेगी अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन वो स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट जो है मेट्रोज में ही हो पाती हैं, टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज हैं और विलेजेस हैं वहां पर पॉसिबल नहीं होता। एज वेल एज इट इज एक्सपेंसिव। तो बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि बीपीएल कैटेगरी में आते हैं और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं वो एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं करा सकते। तो यहाँ पर भी डॉक्टर्स लिमिटेड हो जाते हैं वो कौन सी ड्रग को प्रेस्क्राइब करें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट अप्रोप्रिएट सैंपल ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल for bacteriologists may not be obtainable. Sometime it is very tough to isolate the bacteriological sample. Okay, and sometime in the villages there is a not very skilled staff available. That's why what happened, this bacteriological sample may not be obtainable. So these are three things which should be considered behind the selection of antimicrobial agent. The next one is empirical therapy. Okay, so in empirical therapy has to be instituted and has been demonstrated to be beneficial in many situation. Empirical therapy का मतलब क्या हो गया? Empirical therapy का मतलब हो गया कि on the basis of the theory, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, और वो कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी जहां पर कि वो काफी हद तक बेनिफिशियल रहेंगी। देन अ क्लिनिकल डायग्नोसिस शुड फर्स्ट बी मेड एट लीस्ट टेंटेटिवली एंड द लाइकली पैथोजन गेस्ड। ओके, यहाँ पर क्या होगा कि डॉक्टर को क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए सैंपल भेज देना चाहिए सबसे पहले। जब तक उसकी रिपोर्ट आए तब उससे पहले ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर ही देना चाहिए, बट जब उनको रिपोर्ट आ जाए तो वो अपनी ड्रग्स को चेंज कर सकते हैं ताकि क्या हो जाए, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए एंड
वो जिस बैक्टीरिया या जिस माइक्रोब को गैस कर रहे हैं कि उस माइक्रोब का इन्फेक्शन हो सकता है, तो रिपोर्ट आने से उन गैस जो उन्होंने किया है वो कंफर्मेशन हो जाएगा। नाउ यहाँ पर देखिए हम किस तरह से देखेंगे ऑर्गेनिज्म रिलेटेड कंसिडरेशन, क्या क्या हमारे पॉइंट्स होंगे। सो इनको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। डॉक्टर किन बेसिस पे ड्रग को सेलेक्ट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो फर्स्ट ये होगा कि क्लिनिकल डायग्नोसिस itself direct choice of antimicrobial agent. Second, a good guess can be made, and the third one is choice to be based on bacteriological diagnostic examination. Okay, so पहला ये हमारा हो गया कि डॉक्टर के पास पेशेंट गया और क्लिनिकल डायग्नोसिस किया डॉक्टर ने, और डायग्नोसिस करने के बाद डॉक्टर को पता ही लग गया सिम्टम देख के कि ये कौन सी डिजीज है, और उसके बेसिस पे उन्होंने एंटीबायोटिक्स जो भी प्रेस्क्राइब करने थे वो उनको प्रेस्क्राइब कर दिए। ओके, सो इसी को हम देखते हैं वन बाय वन, हम सारे ही पॉइंट्स को देखते जाएंगे। सो इन दिस केस क्लिनिकल डायग्नोसिस इटसेल्फ डायरेक्ट द चॉइस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। So what happened? The infecting organism and its sensitivity pattern are by and large known. Okay, तो यहाँ पर देखिए कुछ केसेस ऐसे हैं जिनका कि इन्फेक्शन का तरीका और जिनके जो सिम्टम्स आते हैं वो काफ़ी हद तक कन्फर्मेटिव होते हैं, जैसे कि सिफिलिस का केस हो गया, कैंक्रोइड, डिप्थीरिया एंड टेटनस, प्लेग, कोलेरा, ट्रैकोमा, थ्रश, tuberculosis, loba, pneumonia, leprosy, amoebiasis and herpes simplex. So these are some disease. In these cases what happened, doctor can directly diagnose and they have almost 99% confirmation that whatever disease they are thinking, that particular disease is infecting the patient. Okay, so in these cases doctor should start the antimicrobial therapy for the treatment. Next thing is a good guess can be made. Okay, next thing is what, a good guess can be made. So डॉक्टर गैस भी कर सकता है कि कौन सा सिम्टम के अकॉर्डिंग, जैसा पेशेंट के सिम्टम दिख रहे हैं और जैसा इन्फेक्शन उनको दिख रहा है उसके बेस पर क्या कर सकते हैं, वो अपना गैस कर सकते हैं। गैस किस बेस पे करेंगे, क्योंकि क्या होगा, डॉक्टर को काफ़ी लोकल एक्सपीरियंस होगा अबाउट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेंसिटिविटी, और जो क्लिनिकल फीचर्स नज़र आ रहे हैं उससे वो क्या गैस कर सकता है कि कौन सी डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया है, बॉइल्स हो गए, वेजाइनलिस है एंड यूरिथ्राइटिस। ये इन सभी केस में क्या हो सकता है कि इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई हो जाते हैं और वो उस केस में अच्छा गैस कर सकते हैं कि इसी बैक्टीरिया की वजह से होगा, तो उस केस में वो थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट शुड बी प्रेस्क्राइब एंड द रेस्पॉन्स वाज्ड फॉर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, डॉक्टर अपने गैस के आधार पर अपना जो गैस लगाएगा डॉक्टर की पर्टिकुलरली XYZ जो पैथोजन है उसका इन्फेक्शन है, और वो अपनी एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर देगा, और 2-4 दिन में जो भी रिजल्ट आएंगे वो उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं इसका मतलब उनका जो गैस किया है कि जिस भी बैक्टीरिया को वो सोच रहे थे कि उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है तो वो क्या है, करेक्ट है। ओके, एंड उसके अलावा डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, दे कैन डू अ ग्राम स्टेन स्मीयर एग्जामिनेशन ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल में हेल्प टू एड द चॉइस। उसके साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, अगर फैसिलिटी अवेलेबल है देन दे कैन गो फॉर अ ग्राम स्टेनिंग। ओके, स्मीयर एग्जामिनेशन करा सकते हैं उससे कि बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। Next, third point, choice to be based on the bacteriological and diagnostic examination. Now, अब कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जहां पर गैस नहीं किया जा सकता। No guess can be made about the infecting organism or its sensitivity. ओके, कि वो जो बैक्टीरिया है वो किस ड्रग के अगेंस्ट में सेंसिटिव है, या फिर जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो कौन से बैक्टीरिया ने किया है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक ब्रोंकियो निमोनिया हो गया, एम्पाइनीमा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ऑस्टियोमाइसिटीज हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड वुंड इन्फेक्शन। सो ये सारे जो केसेस हैं इसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो पर्टिकुलर किसी एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में गैस नहीं किया जाता। इन सभी केसेस में क्या होगा, आप लोगों को याद रखना है, ऐसे जो केस हैं वहाँ पर डॉक्टर अपना इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले उसका जो टेस्ट है वो जरूर करवाएगा कि कौन से बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है, मतलब कि जो कंफर्मेटिव टेस्ट है, डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन जहां पर की बहुत जरूरी है। तो
ऐसे यहाँ इस तरह की डिजीज आप याद रखिए, जो तीनों ही केसेस मैंने आप लोगों को बताया, वहां पर जो डिजीज के एग्जाम्पल है उनको याद रखिए, क्वेश्चन भी बनता है। इन दीज सिचुएशन एन एंटीमाइक्रोबियल शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट और अदर सुटेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इस केस में क्या होगा, जब भी इस तरह के इन्फेक्शन डॉक्टर्स के सामने आएंगे, वो क्या करेंगे, वो आपकी जो भी सैंपल्स होंगे उनको किसके लिए भेजेंगे, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस है तो वो क्या करेंगे, जो सैंपल होगा उसको क्या कर देंगे, कल्चर के लिए भेज दिया जाएगा, एज वेल एज उसमें उस सैंपल में जो माइक्रोब्स हैं वो कौन सी एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव हैं वो भी उसके लिए चेक कर लिया जाएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट में, ताकि पता लग जाएगा कि जो भी बैक्टीरिया है वो कौन सी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है और कौन सी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट नहीं है। तो अगर जो इन्फेक्शन है अगर वो किसी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का है, तो सपोज करिए अगर एमोक्सिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है तो यहाँ पर एमोक्सिसिलिन प्रेस्क्राइब नहीं की जाएगी, उसके अलावा जो ड्रग उस बैक्टीरिया पर इफेक्टिव होगी उसको प्रेस्क्राइब किया जाए। यहाँ पर और सुटेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट और क्या हो सकते हैं, जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट हो सकता है, पीसीआर हो सकता है, बट ये जो टेस्ट है ये जो है अब बड़ी सिटीज़ में ही अवेलेबल होते हैं, छोटी विलेजेस में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ मुश्किल आ जाएगा, जो छोटे विलेजेस में डॉक्टर्स हैं उनके लिए मुश्किल होगा। तो जो टेस्ट पॉसिबल है वो टेस्ट किए जा सकते हैं और उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, क्योंकि इंडिया बड़ी लार्ज कंट्री है, जो भी ऐसी डेवलपिंग कंट्री वहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो चॉइस टू बी बेस्ड ऑन बैक्टीरियोलॉजिकल एंड डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन, यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व रहेंगे वो डिस्कस हम करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट बैक्टीरियोलॉजिकल डायग्नोसिस, bacteriological diagnostic services are not available. Okay, the first thing is that bacteriological diagnostic services are not available. Second is what, bacteriological diagnostic services are available but treatment cannot be delayed. अवेलेबल है बट ट्रीटमेंट डिले नहीं किया जा सकता, और एक केस ऐसा है जिसमें ट्रीटमेंट डिले किया जा सकता है। ओके, तो इन तीनों ही केसेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल फॉर डायग्नोसिस। ओके, सो इस केस में क्या हो जाएगा, empirical therapy to cover all likely organisms with a broad spectrum drugs. Okay, तो यहाँ पर empirical therapy start की जाएगी on the basis of theory. drugs को choose किया जाएगी कि कौन सी drugs जो हैं particularly बैक्टीरिया के अगेंस्ट में या माइक्रोब के अगेंस्ट में इफेक्टिव हो सकती है। So physician में prescribe broad spectrum antibiotics. सो कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, फ्लोरोक्विनोन, टेट्रासाइक्लिन और अ कॉम्बिनेशन सच एज जेंटामाइसिन एंड सेफेलोस्पोरिन may be used with metronidazole or clindamycin if anaerobes are resuspected. Okay, सो यहाँ पर क्या होगा, अगर किसी एनाएरोब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ओके, अगर एनाएरोब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है उस केस में जेंटामाइसिन सेफेलोस्पोरिन को मेट्रोनिडाजोल और क्लिंडामाइसिन के साथ में प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। सो दिस कैन बी अ चॉइस फॉर द डॉक्टर्स टू ट्रीट द पेशेंट suffering from anaerobic infection. Further therapy is modified on the basis of clinical response. अब अगर यहाँ पर फिर फर्दर जो क्लिनिकल रेस्पॉन्स मिलता है ड्रग सेलेक्ट करने के बाद में, उसके बेसिस पे अगर आपने जो ड्रग दी है वो इफेक्टिव नहीं है तो उसको चेंज किया जा सकता है, और अगर ड्रग इफेक्टिव है तो फिर फर्दर उसकी डोजेज में क्या क्या चेंज करना चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज करना चाहिए वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। देन फर्दर थेरेपी इज मॉडिफाई ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल रेस्पॉन्स, but hasty and arbitrary changes in the selection of antibiotics should be avoided. Okay, तो यहाँ पर समझिए कि hasty का मतलब क्या हो गया और arbitrary का मतलब क्या हो गया। Okay, arbitrary means बेसिकली जो आपकी थ्योरी कहती है उसके अगेंस्ट में जो रूल्स हैं एंटीमाइक्रोबियल सिलेक्शन के उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, एज वेल एज हैस्टी मीन्स बहुत ही फास्ट वे में हमें ड्रग्स को चेंज नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हैस्टी और आर्बिट्रेरी चेंजेस शुड नॉट बी मेड, इस तरह से बचना चाहिए, जो कि डॉक्टर्स को ऑलरेडी जब डॉक्टर्स ट्रेनिंग लेते हैं उनको ये चीज सिखाई जाती है। सेकेंड पॉइंट, whenever bacteriological diagnosis services are available but treatment cannot be delayed. देखिए क्या हो सकता है, पेशेंट किसी भी किस डिजीज से सफरिंग है वहां पर डायग्नोसिस करना जरूरी है बट ट्रीटमेंट को डिले नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप देखिए कि मेनिंजाइटिस हो गया किसी पेशेंट को या फिर सेप्टिसीमिया हो गया, इन दोनों ही केसेस में ट्रीटमेंट को डिले नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई डॉक्टर्स कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ओके, सो
Specimen for bacteriological examination should be collected and empirical therapy should be started provisionally. Okay. So in case of inadequate response, the antimicrobial agent should be changed later in the light of bacteriological finding. देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा चुका है, बट अगर एम्पेरिकल थेरेपी जो है इफेक्टिव नहीं है और उसके बाद में जो हमारे पास में डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आई है, तो उसमें कौन सा, जिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हम दे रहे थे वो बैक्टीरिया पर वो जो ड्रग हम दे रहे थे वो इफेक्टिव नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, डॉक्टर्स अपनी ड्रग को चेंज करेगा और जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आई है उसको यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करेंगे. देन वी हैव अ थर्ड केस, बैक्टीरियोलॉजिकल सर्विसेज आर अवेलेबल एंड ट्रीटमेंट कैन बी डिलेड फॉर फ्यू डेज. नाउ क्या हो सकता है, पेशेंट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को जो भी इन्फेक्शन लगा, जैसे कि सपोज करो पेशेंट को क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस में क्या होगा, डॉक्टर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करेंगे क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन नहीं है. सो इन दैट केस डॉक्टर कैन वेट फॉर द रिपोर्ट. ओके, जो भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के लिए बैक्टीरियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कराया है उसके लिए वेट किया जा सकता है और फिर उसके रिजल्ट आने के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा. सो in such case it is better to wait for the culture report and sensitivity report. Okay, and then after checking the report, doctor then further start the therapy for the patient. Okay, I hope you people are able to understand organism related factor. Here I discuss some MCQ with you guys. Just look on those MCQ. The first question, which of the following organism related factor involved in the choice of antimicrobial agent for the treatment by doctor? A, clinical diagnosis itself direct the choice of antimicrobial agent. B, choice to be based on bacteriological oblique diagnostic examination. Both are correct, none are correct. Question number 2, if bacteriological diagnostic services are available, but in which case treatment cannot be delayed? Okay, so first option A, meningitis, B, septicemia, C, both of these, and D, none of these. Question number 3, if bacteriological diagnostic services are available, but in which case treatment can be delayed? Okay, so meningitis, septicemia, chronic urinary tract infection, none of these. Question number 4, in which case drug of choice to be based on bacteriological or diagnostic examination? A, meningitis, bronchopneumonia, C, emphysema, D, all are correct. Question number 5, in which case clinical diagnosis itself direct choice of antimicrobial agent? Okay, so first option syphilis, second option chancroid, third option diphtheria, and fourth option all are correct. So I already discussed answer of all of these question in my lecture. If you have any doubt, then go through with the lecture again and answer in comment box. Okay, so अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है सभी बच्चों के लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए. जय भारत, जय हिंद.